Hello learners, welcome back to the channel Economic Cities. I'm the your educator, and today we are going to just continue the question. Question number 11. I have completed this, that is a trading account and profit and loss account. Okay, so and I have given you the to prepare as homework, that is the balance sheet. Okay, and question number 12 also was for your homework, right? So if you have done, well done. Otherwise, you can start solving with me. Okay, so let's start here. So we have got the net profit of 54120. And one more thing, question number 12 was your homework. We'll try to complete this question number 13 today. You can take the screenshot. Okay. Then question number 14 for your homework. So I'll try my best to complete two questions in one video, but still if I didn't get the time, then what happens here? It's for your homework to prepare the rest of the accounts. Okay. Whether it is balance sheet or profit and loss account, it's totally your homework. Okay. So you can do it by yourself. So let's start here. Question number 11, balance sheet. Okay. Okay. Here we have the balance sheet of Mr. Sputnik. Okay. So first here, what I'm going to do again, first put the heading balance sheet as at, जो भी डेट मेंशन होगी इसमें 31st March है 23. Then we are going to first draw the columns, that is the tables, liability side and asset side, right? Very quickly and draw neatly. Put the heading liabilities amount rupees, assets amount rupees, right? आई होप आप सबको इतनी चीजें याद हो गई होंगी. इसी तरह का फॉर्मेट सब में होगा, बस ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होगा आपका, पर्टिकुलर्स लिख देते हैं. इसमें क्या ये स्टेटमेंट है. व्हाट हैपेंड हियर, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज. ओके अगेन, ठीक है चलो अमाउंट देख लेना. अमाउंट रुपीज, एसेट्स, अमाउंट रुपीज. ओके, फर्स्ट सबसे पहले क्या करेंगे हम लायबिलिटी साइड में, हमेशा से आपको क्या लिखना होगा, कैपिटल, राइट. कैपिटल में नेट प्रॉफिट हमें मुझे पता ही था, so I'm going to add here net profit. If there is a drawing, then you are going to subtract the drawings, right? So let's see, our drawings are also given, okay, of 3000. So capital is 10180 and net profit was 54120. 54120. So you will get here 64,300. आप इस तरह भी कर सकते हैं. And less drawings. Drawing is 3000. ये ऐड किया है, ये माइनस किया, राइट. सो यू विल गेट इन द आउटर कॉलम 61,300. नाउ अब जो भी आपका लोन है या क्रेडिटर्स हैं या बिल्स पेबल हैं वो सब आपका लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा. सो लोन यहाँ पे गिवन है, ओके, दैट इज 6000 अगेन. देन क्रेडिटर्स 5000 गिवन एज क्रेडिटर्स. एंड एक और चीज थी इसमें, अच्छा यहाँ पे देखो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट है, राइट. तो हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में है तो यानी कि ओवरड्राफ्ट का होता है, राइट. तो हम इसको एज इट इज ऐसे लिख देंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया करंट अकाउंट, राइट. तो ये आपका है 600 का. ना कम टू दिस पार्ट, या कैश है, बैंक है, ये सब चीजें आप इसको ऐड करनी है. तो पहले हमने कर लिया बैंक. बैंक आपका है 2200, डेबिट साइड पे होगा इसलिए आपको इसको ले लिया, राइट. लीज होल्ड प्रेमिसेस 28,000.
Then heavy vehicles, that is 20,000. Then motor car, 11,000. Then debtors, 4,000. कैश, आप बैंक के साथ भी कैश लिख सकते थे, ये एज इट इज जो भी ट्रायल बैलेंस में आता जा रहा है आप उसको रिकॉर्ड करते जाइए, ये भी हो सकता है, राइट। एंड ऑफ कोर्स नेवर मिस क्लोजिंग स्टॉक, सो इट इज अराउंड 7,500 गिवन एंड ऑफ द क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको मिलेगी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में मिलेगी ना। टोटल द both the sides, liability and asset side, you will get 72,900. 72,900. So this was the balance sheet of Mr. Sputnik. Okay. I think डेट इसमें जो है लिखी है 31/12, मैंने ये गलत लिख दी है, राइट। तो आप प्लीज इसकी डेट जो है मेंशन करेंगे 12। ये अगर मिस्टेक है तो आप इसको सही कर लें, राइट, मैंने कर दी थी। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12 here, okay? In question number 12 आपको क्या बताया जा रहा है? The following trial balance was extracted from the book of A. Harding as on 31st March, okay? Please, you can take the screenshot. This was question number 11, right? Balance sheet. Now question number 12 I'm going to do. सबसे पहले क्या? That is the table. Table मतलब format, okay? So I have to just make the format of trading account. So here I have the trading account. पहले मैं फॉर्मेट बना लूंगी, उसमें मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, ओके। सो ट्रेडिंग अकाउंट किसका है ये? ए हार्डिंग का, ऑफ मिस्टर ए हार्डिंग, ओके, फॉर द ईयर एंडेड 31st का था इसका, 31st March। यहाँ पे क्रेडिट भी लिख दो, यहाँ पे डेबिट भी लिख दो, साथ में सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं। सो प्लीज यू हैव टू मेक श्योर कि आप हर चीज़ को प्रॉपरली लिखिएगा, ओके। ना जब भी परचेजेस देखिए उसके साथ सेल्स भी देख लिए एंड रिटर्न्स भी देख लिए, ओके। ओपनिंग स्टॉक भी चेक कर लिए। सो कैपिटल ड्रॉइंग्स हैं तो ये समझ में आ गया, पेटी कैश, कैश परचेजेस सेल्स, और क्रेडिट परचेजेस सेल्स भी है, रिटर्न्स भी है, वेरी गुड। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर। ओपनिंग स्टॉक, कैरेज इनवर्ड्स भी है, देखो ओपनिंग स्टॉक भी है, ठीक है, सब चीजें हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितनी है आपकी? 5,000। अब रिमेंबर परचेजेस में भी क्रेडिट है और उसमें भी है, टू परचेजेस हमने लिखा इनर कॉलम में, राइट। कैश आपका है मतलब 10,000 का, प्लस इसके साथ आप क्रेडिट कर लेंगे परचेजेस, ओके, 12,000। देन माइनस कर देंगे रिटर्न्स, ओके। रिटर्न्स कितने हैं? 1,000। और देखिए रिटर्न्स हमेशा इसके क्या होते हैं? क्रेडिट साइड पे होता है, ठीक है। तो अमाउंट क्रेडिट साइड पे परचेजेस का होगा, सेल्स का उसका ऑपोजिट होता है, राइट। तो इन सबको जब हम टोटल करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, सो यू विल गेट इन द आउटर कॉलम 21,000, ठीक है। अब मैंने कैरेज इनवर्ड भी बोला था, सो टू कैरेज इनवर्ड्स, राइट। कैरेज इनवर्ड कितना है आपका? 500। देन सेल्स के साथ भी वही ऐसे ही करेंगे जैसे परचेज के साथ किया था, बाय सेल्स प्लस क्रेडिट प्लस, सॉरी माइनस होगा ना यहाँ पे, तो रिटर्न्स है माइनस। अच्छा, सेल्स रिटर्न्स हमेशा डेबिट साइड पे आएंगी, राइट। सो सेल्स 20,000 थी, प्लस 25,000, ठीक है, और माइनस कितना कर रहा है? रिटर्न्स 2,000।
So you will get in the outer column 43,000. And of course, closing stock आपको given है question में, end में, ठीक है, closing stock कितना है 26,000. Now see, कुछ और तो नहीं बचा है, I think no, nothing. तो इसका टोटल करेंगे आपको मिलेगा 26,500. ओके, और इसका जब आप टोटल कर रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है ये 69,000. So of course I'm getting a gross profit. So I'll write here to gross profit transferred to profit and loss account. ये आपको पूरा लिखना है, ठीक है, डोंट मिस दिस. इस तरह आप टोटल लिखेंगे, टोटल बनाएंगे लाइंस नीटली. 69,000 क्रेडिट साइड का ज्यादा है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग द प्रॉफिट. दैट इज द ग्रॉस प्रॉफिट. इसको माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा 42,400. Now I'm going to make a profit and loss account of for the same. So I'm going to write here profit and loss account for the year ended on 31/3/23. यही डेट मेंशन कर देंगे, राइट. जल्दी से मैं इसका अकाउंट बना लेती हूँ. Again you have to write the particulars amount rupees, particulars amount rupees. और ज्यादातर आइटम्स आपके क्या होते हैं इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में ही आते हैं, ठीक है. All the indirect incomes on the credit side and indirect expenses on the debit side, right? You remember rule रखिएगा आप, okay? So I'm going to write here debit and credit. Then particulars, amount rupees, particulars, amount rupees. Now to and by, always write it. ग्रॉस प्रॉफिट था, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट आप यहाँ पे लिख देंगे, ट्रांसफर कर देंगे. ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहाँ से हुआ है, trading account. You will write neatly, okay? So that was 42,500. Now let's see the amount. डिस्काउंट आपको जो है डेबिट साइड का बैलेंस होगा, तो डिस्काउंट यानी कि अलाउ किया होगा आपने, दैट इज 400. देन सैलरीज, अगर वेजेस होता तो वेजेस हमेशा जाता है आपका ट्रेडिंग में, राइट. सैलरीज ऑलवेज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. देन सन्ड्री पेटी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस हैं ऑलवेज डेबिट. सन्ड्री पेटी expenses is 1,200. Then bad debts, it's again a loss. वो पैसा आपको नहीं मिला है, 600. Then rent, it's again an expense. So profit and loss में इसलिए शो हो रहा है. And to stationery, ऑफिस स्टेशनरी, ये सब कुछ भी काम आता है, ये सब आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यू हैव टू शो दैट, ओके. Then commission is received, right? So you are going to write, अगर कमीशन पेड होता तो डेबिट में आता, राइट. अगर कमीशन लिखा है और कुछ भी नहीं लिखा और क्रेडिट में बैलेंस है, उसका अमाउंट दिया ट्रायल बैलेंस में, देन अगेन इट इज अ क्रेडिट. जरूरी नहीं रिसीव्ड लिखे ना लिखे, ओके. नाउ यू हैव टू टोटल बोथ द थिंग्स. सो यू विल गेट योर 42,700. और इसका अगर आप टोटल करेंगे, सो यू विल गेट योर 12,200. दैट मीन्स यू आर गेटिंग अ नेट प्रॉफिट. टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहाँ ट्रांसफर करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जब भी आएगा. नेट लॉस तो बहुत कम आता है, ओके. टू कैपिटल अकाउंट, ऑलवेज रिमेंबर, एंड यू हैव टू मेंशन, राइट. मैं भी चाहूँ शॉर्टकट कर सकती हूँ, बट आई ऑलवेज ट्राई टू मेक एवरीथिंग क्लियर. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज राइट द फुल थिंग्स, full statement I always used to write here, okay. Then 30,500.
Now I have to prepare the balance sheet. Balance sheet has at 31st/3/23. Okay. Now here you have to write the liabilities amount rupees and assets amount rupees. Okay, remember each and everything. यहाँ पे कोई डेबिट क्रेडिट मेंशन नहीं करना है. Okay. Liabilities amount rupees, assets amount rupees. Now first of all capital. आपने ड्राइंग्स पढ़ा ही था और नेट प्रॉफिट हमें आया है. ओके, अमाउंट क्या है आपका मिला था राइट. और इसमें क्या है लेस ड्राइंग्स. पहले से इसलिए लिख ली ताकि यू विल नॉट जस्ट फॉरगेट एनीथिंग. ओके, कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी. 30,500 लेस करा हमने ड्राइंग्स 1,500. आप इस तरह भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी करके लिख सकते हैं राइट. इन दोनों का पहले टोटल करें फिर माइनस करें. एनी ऑफ द वेज आउटर कॉलम में लेकर सिंगल अमाउंट शो करिएगा राइट इस तरह का. देन क्रेडिटर्स 10,000. Then bank loan is given 14,400. Now come to this part, cash in hand 1,400. Then petty cash. जो जो जिस टाइम मतलब नेम से मेंशन है आपको वैसे ही लिखना है. ठीक है, ये नहीं कि कैश के साथ ऐड करके लिख दिया पेटी कैश. नो. देन मशीनरी that is 36,000. Then furniture amount is 5,000. Then debtors 5,000. एंड ऑफ कोर्स योर क्लोजिंग स्टॉक जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में आपको शो करनी है और एक आपको एसेट साइड पे शो करनी है. यही एडजस्टमेंट है राइट. क्लोजिंग स्टॉक इज 26,000. नाउ यू आर गोइंग टू balance both the sides and it should be equal. It must be equal, right? So 73,500 and 73,500. I hope you understand this question, right? ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका. मिस्टर हार्डिंग का अकाउंट बनाया हमने. पहले ट्रेडिंग अकाउंट देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब इसका जो बैलेंस हुआ नेट प्रॉफिट मिला वो मैंने बैलेंस शीट में कैपिटल साइड पे ऐड करके टैली कर दी बैलेंस शीट. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर आई थिंक 12, राइट. नाउ आई एम गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 जितना भी मैं कर पाती हूँ. क्वेश्चन नंबर 13 इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना ही है हमें. सो आई एम गोइंग टू मेंशन ट्रेडिंग अकाउंट of Mr. for the year ended on Mr. Chatterjee का है राइट. क्वेश्चन में 31st December है. As on 31st December 22 of Mr. Chatterjee. Okay, you will mention this. Now I'm going to make this thing. This is your question number 13. अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना पाती हूँ देन इट्स फॉर योर होमवर्क. ओके, सब प्रैक्टिस करते रहिए आप. particulars amount, debit and credit. Take the screenshot of all the questions, then you can practice afterwards also, right? Okay, let's start here.
मिस्टर चैटर्जी का क्या ओपनिंग स्टॉक है, कैपिटल ड्रॉइंग्स, लोन फ्रॉम पटेल, परचेजेस, रिजेक्शंस, रिटर्न, तो यानी कि ये रिजेक्शंस का मतलब है सेल्स रिटर्न एंड परचेज रिटर्न, कैरेज आउटवर्ड, टेलीफोन एंड ट्रंक कॉल्स, पेडी एक्सपेंसेस। ओके, ठीक है। कस्टमर्स एंड सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स इसका मतलब है आपका क्या है ये, दिस इज व्हाट, जस्ट वेट, मिस्टर चैटर्जी, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स मतलब आपके आ जाएंगे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ओके, परचेज एंड सेल्स भी है, रिटर्न्स भी है, बस आपको यही मेंशन करना है। सो वेरी क्विकली आई एम गोइंग टू मेक द दिस अकाउंट टू एंड बाय। अब मैंने अभी बताया ना सेल्स के साथ रिटर्न्स भी है, सो मेंशन दैट, ऑफ कोर्स क्लोजिंग स्टॉक टू। अब इसके अमाउंट सब आप इसकी वैल्यू लिखते जाइए, टू, टू परचेजेस एंड लेस रिटर्न्स। ठीक है, अब इसका अमाउंट मैं लिख देती हूँ। सेल्स कितनी है, 50,000 गिवन है, क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, एंड लेस रिटर्न्स कितना है, 2,000 है, सो यू विल गेट 48,000। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया है 15,000, एंड में दिया होगा, राइट। ओपनिंग स्टॉक इज 5,000 इन द क्वेश्चन, देन परचेजेस 13,000 था, लेस रिटर्न्स आपके हैं 500, दैट इज 12,500। नाउ वेजेस गिवन है आपको क्वेश्चन में 5,000, राइट। नाउ इसको बैलेंस करो, ये आया 63,000, ऐड करो, इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आप कितना आ जाएगा, 5,000 plus 12,500 plus again 5,000. So you are getting 22,500 minus 63,000. So you will get 4,500, right? Gross profit. Gross profit transferred to profit and loss account. ठीक है, ये बैलेंस कर लो, 63,000 and here you have 40,500. Okay, so this is the question number 13, trading account. Okay, now same question, I'm going to prepare this, the profit and loss account. So you have to make this profit and loss account like this. Again, the date, particulars amount rupees and particulars amount rupees. Quickly mention it, okay? So it will be easy for you to understand the concept. First, put the heading, profit and loss account for the year ended, क्या था, 31st 12 आप रजिस्टर्स पे लिखेंगे तो हर चीज सही से मार्क होगी, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू राइट हियर डेबिट, credit. Meanwhile, you can just transfer the gross profit to profit and loss account. Now I'm going to mention here to and buy. Now gross profit transfer from trading account आप mention कर लिएगा, that is 40,500. Now what you are going to write here, that is first of all salary is given, carriage outward, this is 8,000, this is 2,000, to rents and rates, okay, 3,000, then to telephone
800. To petty expenses, 400. Now you're going to balance. Okay. So you will be getting a to net profit. To net profit transfer to capital account. पूरा लिख लेना अपने आप, ठीक है? Account. So here you have the balance of 40,500 here. Balance is 26,300, sorry. Total is 40,500. Now, this is for your homework. You will do question number 14, homework, and balance sheet you are going to prepare of question number 13. Tally कितने amount से हो रही है? 70,000. Answers are already mentioned. Hope you understand it. Okay. So this was a Chatterjee's account. Question number 13. Question number 14, I've already shared you the screenshot. आप लेकिन पूरा लिखिएगा gross profit transfer to profit and loss account and by gross profit okay transferred from trading account. ये आप जरूर mention करिएगा to net profit transfer to capital account. Okay. So till here we have done so far around 13 questions we have completed. 14th आपका जो है homework में है. बैलेंस शीट आपको बनानी है क्वेश्चन नंबर 13 की. अमाउंट 70,000 से टैली कर रहा है. ओके. सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, and please stay tuned with Economic Cities. Thank you for watching.